लॉकडाउन डजंट सीम टू एंड। ऐसा लगता है जैसे ये लॉकडाउन खत्म ही नहीं हो रहा है और बच्चों को काफी परेशानी हो रही है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। सबके घर में उतनी सहूलत नहीं होती है, उतने एजुकेटेड पेरेंट्स नहीं होते हैं। तो आज हम लोग कुछ मैथ्स के चैप्टर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे जो थोड़ी टफ जरूर है, लेकिन अगर ध्यान से की जाए तो ये काफी इजी बन जाती है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। Today we will do a chapter of algebra and a very important chapter that is called algebraic identities. Now before we proceed, you must know what identity mean. Identity actually a general formula which holds true irrespective of the values of the variables. That is called an identity. Whatever the value of the variable is, if the formula doesn't change for that, then it is called an identity. Today I'll show you some identities which are applicable for finding the product of algebraic terms. Okay, let's begin. I will begin with some examples. Now suppose you have a question, find the following products. Yeah, find the product of certain number. Find the product. अब प्रोडक्ट मतलब तो आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, बिकॉज आई एम डूइंग algebraic identities chapter that is generally for senior sections. You have this chapter in class 7 and 8. Some schools they start early, even in class 6. So if you are in class 6, you can also follow this. Now product, the word product means in algebra multiplication. So whenever I tell you to find the product or the sum demands you to find the product, that means you have to multiply those numbers. Now if in simple terms, if I tell you what is the product of 5 and 7, so you will tell me 5 into 7, that is 35. But since we are doing algebra, means there are some variables involved. So it is not as simple as 5 into 7 or any other constant number. So let's see how it goes. Suppose the question is find the product. Number one sum is x plus 2 within bracket, and the second number within bracket is x plus 5. Now when you see this kind of sum, I will write this x plus 2 entire thing within bracket and then another bracket, and I'll write x plus 5. Now in certain books, this kind of sum is shown with the help of different formulas. There are so many formulas of finding the product, and those formulas distributive law they are called. You need not bother about them. The formula that I am going to tell you today is very extremely simple. You don't need to memorize that also. You just need to understand, and then you can multiply any number. Let's see. What you have to do is, see, you have two variables here and two constant here. The variables here used are x, and two constants are 2 and 5. The variable is same in both the brackets, that is x. What I will do is, I will just when you do the sum in your copy, जब आप कॉपी में करते हो ना, तो हल्के से एक पेंसिल लेना और x को अंडरलाइन कर देना हल्के से, फॉर योर कन्वीनियंस. तो आपको करना क्या है ना, x को आप दूसरे ब्रैकेट के दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना. तो आप नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू साइन दो, पुट एन इक्वल टू साइन इन द नेक्स्ट स्टेप, एंड मैंने बोला आपको फर्स्ट वेरिएबल के साथ आप दूसरी ब्रैकेट के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे. तो पहले हम x लिखेंगे और x को दूसरे ब्रैकेट के दोनों नंबर के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे. x इंटू एक्स, that is x square. X into x, that is x square. Okay. नेक्स्ट हमारा होगा x into 5, that is 5x. ये हो गया ना, हमने पहले x से सेकेंड ब्रैकेट के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया है. अब हम क्या करेंगे, उसे इरेज कर देंगे. वो अंडरलाइन x के नीचे जो हमने हल्का सा पेंसिल से अंडरलाइन किया था, उसे हम इरेज कर देंगे. अब हम 2 के नीचे उसको अंडरलाइन करेंगे. सो आई विल पुट अ स्मॉल मार्क और अंडरलाइन इट विद अ लाइट पेंसिल just below the 2.
अब हमारा क्या काम होगा, हमें 2 से सेकेंड ब्रैकेट को, जैसे हमने बिल्कुल जैसे किया है फर्स्ट ब्रैकेट के साथ किया था, फर्स्ट वेरिएबल के साथ सेकेंड ब्रैकेट के दोनों नंबर को, अब हम वही चीज दूसरे नंबर के साथ करने वाले हैं, सेकेंड नंबर के ब्रैकेट को। सो 2 के साथ आप x को मल्टीप्लाई करोगे, सो 2 into x, दैट इज 2x। और फिर हम 2 से ही 5 को करेंगे, नेक्स्ट 2 into 5 दैट इज 10। अच्छा, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ये जो इक्वल टू के बाद आपको आया है ना, ये सारे हमारे आंसर्स है। सो आप यहां पे लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, इट्स क्वाइट सिंपल। करना ये है कि हमें 2 ब्रैकेट्स दिए गए हैं और दोनों ब्रैकेट के बीच में, अच्छा यहां पर आप एक बात ध्यान देगी, जब भी हम अलजेब्रा के सम्स करते हैं ना, तो हमें साइन का बहुत खास ख्याल रखना है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द साइंस, बिकॉज अलजेब्रा में खास तौर से अगर आपने साइन में मिस्टेक कर दी ना, तो आपके सारे सम रॉन्ग हो जाते हैं, पूरे स्टेप्स ही रॉन्ग हो जाती है। सो बी केयरफुल अबाउट द साइंस। नाउ यहाँ पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे ही साइंस पॉजिटिव में है, प्लस साइंस है, इसलिए ये काफी इजी है। बट आई विल शो यू लेटर कि अगर प्लस के साथ माइनस साइन हो तो हमें क्या करना है। चलिए फॉर द टाइम बिंग मैं इसे बताती हूँ। ये हमारा सब मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब ये जो मेरे राइट हैंड साइड उसमें वैल्यूज आए हैं ना, इन्हें मैं एक साथ करके लिखूंगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ये जो हमें नंबर्स मिले हैं ये हमारा आंसर है। अब हमको क्या करना है, माय नेक्स्ट स्टेप, और बस अब एक स्टेप हमारे पास बच गया है इसे सॉल्व करने के लिए, वो है कि जो लाइक टर्म्स है ना, हमें उन्हें ऐड करना होगा। इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्ड यू कि ये लाइक टर्म्स क्या होते हैं। बच्चों, जब आप अपने बुक्स में देखोगे, मैं भी उस दौर से गुजर चुकी हूँ, इवन ड्यूरिंग माई स्कूल डेज देयर वर सम टर्म्स व्हिच आर सो कॉम्प्लिकेटेड, मुझे समझ में नहीं आता था एंड मुझे बहुत मुश्किल होती थी। और वो जब मैं अब समझ गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी उसे इतनी आसानी से समझ लें। बुक्स के टर्म्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं समझने के लिए। जो मैं लाइक टर्म्स का आपको अभी डेफिनेशन देने जा रही हूँ। लाइक टर्म्स समझने के लिए आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो वेरिएबल है वो सेम होगा और उसके पावर्स भी सेम होंगे, तभी वो टर्म्स लाइक टर्म्स कहे जाते हैं। यहां पर वो जो वेरिएबल है वो x है, वो सभी सेम है, लेकिन 2 x ऐसे हैं जिनके पावर्स कुछ नहीं दिए हुए, इसका मतलब 1 है। तो ये जिनके पावर सेम है ना, वो लाइक टर्म्स हुए, और जिनके पावर अलग है, जैसे x के पावर यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है पहला वाला, तो वो लाइक टर्म्स में नहीं होगा क्योंकि उसके पावर डिफरेंट है। आपको सेम पावर और सेम वेरिएबल होना जरूरी है लाइक टर्म्स के लिए। तो आप ध्यान रखना, लाइक टर्म्स क्या होता है, व्हाट आर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स आर दोज व्हिच हैव द सेम वेरिएबल एंड द सेम पावर। तो यहाँ पे 5x जो है, इसमें 5 कांस्टेंट कहे जाते हैं और x जो है वो वेरिएबल है। सिमिलरली इन केस ऑफ 2x, 2 इज द कांस्टेंट एंड x इज द वेरिएबल। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है ना बच्चों, ये सेम है, x है। पहले वाले में भी वेरिएबल x ही है, लेकिन फर्क क्या है, पहले वाले में पावर अलग है, दैट इज 2x स्क्वायर, वो इसलिए लाइक टर्म्स में नहीं काउंट होगा। लाइक टर्म्स में क्या काउंट होगा, 5x और 2x, क्योंकि यहाँ पे पावर भी सेम है और यहाँ पे वेरिएबल भी सेम है। सो 5x और 2x को हम ऐड करेंगे। ऑलवेज यू हैव टू ऐड द लाइक टर्म्स। सो 5x प्लस 2x इज 7x। तो हम पहले x स्क्वायर वैसे ही उतार देंगे, बिकॉज और x स्क्वायर तो है नहीं लाइक टर्म मुझे x स्क्वायर वाले। So x square plus 7x plus 10, this is my answer. तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। लेट्स डू एन एग्जाम्पल जिसमें माइनस साइन का यूज किया गया हो, क्योंकि साइन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एल्जेब्रा। साइन की मिस्टेक्स बहुत बच्चे करते हैं। कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो
सम तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, उन्हें फॉर्मूलाज भी आते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पुटिंग द राइट साइन वहां पे वो मिस्टेक कर देते हैं. सो बच्चों आप ये ध्यान में रखना कि while सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ algebraic इक्वेशन, algebraic expression, you must keep this in mind that sign must be put correctly. चलिए एक सम करते हैं. x minus 3 within bracket and x plus 5, x plus 7 sorry, x minus 3 and in second bracket x plus 7. अब यहाँ पे ये दो ब्रैकेट है, इसका भी ये करना क्या है, हमें प्रोडक्ट निकालना है. आपको कोई लॉज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल जान लो कि इसी के प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं. जो मेथड मैं बता रही हूँ बस आप उसको फॉलो करना. एज लॉन्ग एज योर आंसर इज करेक्ट यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स. चलिए हमारा जो स्टेप था वो क्या बोलता है. फर्स्ट स्टेप हमें मैंने ये सिखाया है कि आपको पहला वाला वेरिएबल को एक पेंसिल से अंडरलाइन कर देना है और उसे सेकेंड ब्रैकेट के दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों से मल्टीप्लाई करना है. तो चलिए हम ये काम करते हैं जल्दी से, फटाक से, झट से. x को हम अंडरलाइन करेंगे और x से दोनों सेकेंड ब्रैकेट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. सो x इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर, और फिर x को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो x इंटू 7 दैट इज 7x. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें जो सेकंड वाली नंबर है ना वो लेनी है. बट ध्यान यहाँ पे ये रखना है, इससे पहले मैंने जो सम कराया है उसमें दोनों में पॉजिटिव साइन थे, प्लस साइन थे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट यहाँ पर जो आप साइन देख रहे हो ना बच्चों, 3 के आगे है वो माइनस साइन है, तो हम माइनस भी लेंगे नंबर के. जब हम मल्टीप्लीकेशन के जाते हैं तो हम माइनस को भी इंक्लूड करेंगे. तो चलिए हम दिखाते हैं, उसका इरेज कर देंगे हम उसके नीचे वाली लाइन, और अब हम 3 से करके दिखाते हैं सेकेंड ब्रैकेट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके. 3 को हम छोटा सा अंडरलाइन कर लेंगे. चलिए अब 3 से हम दोनों को सेकेंड ब्रैकेट के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. सो -3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे. आप ध्यान रखिए बच्चों, डू नॉट मेक दिस मिस्टेक. कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, वो फटाफट में इतनी जल्दबाजी में होते हैं, दे जस्ट फॉरगेट के माइनस साइन का भी कुछ करना. व्हाट दे डू इज जस्ट 3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इतना टाइम वेस्ट करने के बाद उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है. थोड़ी सी सावधानी ध्यान देने की है, और यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी की वजह से आपका सम करेक्ट हो सकता है, और जरा सी लापरवाही आपने दिखाई तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा. सो साइन का बहुत ध्यान रखना है. -3 से अब आप x को मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये हुआ -3 इंटू एक्स -3x. नेक्स्ट -3 से आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे. सो -3 इंटू 7. तो ये आपका हो गया. यहाँ पे 7 3 21 और माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस. साइन को भी, नंबर को भी मल्टीप्लाई करते हैं और साइन को भी मल्टीप्लाई करनी होती है. अगर एक नंबर में माइनस साइन हो, दूसरे नंबर में प्लस हो, तो माइनस प्लस इज ऑलवेज माइनस. ये हमारा आ गया. अब हम इसे कॉपी करेंगे एक लाइन में. सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x -21. -21. ओके, ये अब सिर्फ एक स्टेप बचा है, वो है एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स. इसके पहले सब में भी मैंने आपको बता दिया है. लाइक टर्म्स का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ लो बच्चों कि लाइक टर्म्स का मतलब होता है दोज नंबर्स विच हैव द सेम वेरिएबल एंड द सेम पावर. वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और पावर भी. सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल तो सब में x x है, लेकिन क्या सब x के पावर सेम है? नहीं. यहाँ पे 2 x है जिनके पावर्स 1 है, कुछ नहीं है इसके मतलब 1 है, लेकिन एक x का पावर 2 है, तो वो हमारा अनलाइक टर्म हुआ. ये दोनों हमारा लाइक टर्म हुआ, 7x और -3x. तो चलिए हम फटाफट से x स्क्वायर को वैसे ही कॉपी कर देते हैं, और अब हम ये लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे. यहाँ पे है +7x और -3x. प्लस माइनस आप जानते हैं, प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस, तो आपको माइनस करना है 7 में से 3, दैट इज 4x. अब बड़े नंबर का साइन आपको देना होता है, जो नंबर बड़ा है. 7x और 3x को हमने सिंप्लीफाई किया है, लेकिन 7x से आगे कौन सी साइन है? वो है प्लस साइन. तो जो भी बड़े नंबर के आगे साइन होगी ना वो आप पुट करोगे. सो इज +4x, राइट. और -21.
ये हो गया आपका आंसर। आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। दिस इज एब्सोल्युटली सिंपल, नथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ। बस आपको बस ध्यान में रखना है छोटी सी बारीकियां जो मैंने आपको बताई हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी आप प्रोडक्ट फाइंड करो तो आपको ध्यान में रखना है कि नंबर को सिर्फ नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, साथ में उनके साइंस को भी मल्टीप्लाई करते हैं। सो keep give this thing thought while doing your sum. I hope you're liking, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो, आपको इससे फायदा पहुंच रहा हो, तो डू लाइक माई चैनल, डू लाइक माई वीडियोज, राइट इन द कमेंट सेक्शन, फॉलो माई चैनल एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।